Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start our second lecture about statistical inference. In the last lecture, our discussion was about statistics. The two major segments of statistics is descriptive statistics and inferential statistics. Our course is about inferential statistics, and we are moving toward the inferential procedures. Last time I stopped my lecture at this slide. In this slide, we have several important terms. I'm going to review back these terms and then follow the next slides. Population is a term which is used for a large collection of similar element related within a specific time or in a specific boundary. Like all students in IBA is the population of students or population of human beings in Karachi or population of transactions in a bank. This was the discussion in the last lecture. Now then, homogeneous, heterogeneous, because with respect to one characteristic, the population is homogeneous. And that characteristic is, suppose we are talking about the transaction in a bank and in a year 2019, then all the transactions have this homogeneity. 2019, the transactions are homogeneous in that way, according to the year. And then all transactions are related to a specific bank. So that is why we call it as a homogeneous. So population, the definition of population include at least one factor of homogeneity. That is why we are including the elements in that population. But at the several attribute or at the other attribute, the same population we can bifurcate into the segments. Like the population of transactions in a bank can be bifurcated into three segments. The transactions which are more than 10 million, the transaction between the 1 million and 10 million, and the transaction amount having less than 1 million. So the big transactions which have a bulk amount transacted. So we can distribute the transaction with respect to the amount. So that is why the same population is heterogeneous with respect to amount transacted. Sometimes it is finite, sometimes it is infinite. Census is a term which is used for complete enumeration. If we want to gather the data from all individuals in our population and analyze the entire population, we use the term census for it. But most of the time in statistical inference, we are not dealing with census because Sir, can our, you speak louder? okay, Can you but speak you a are, little louder? okay, I can speak. For example, in most of the time, we are not dealing with the census in inferential statistics. The reason is inferential statistics is a procedure which deals with population not directly by census. It deals with population through the sampling. That is basically the inferential statistics is. So that is why in this course, we are not discussing the procedure of census, but you should have an idea in your mind. Okay, if you want to analyze the population, then you can analyze the population by census. In that case, you have to analyze and get the data from the all individuals from my population, and then we have to compute some parameters in which we are interested. So in inferential statistics, our focus is on sampling, because initially, whenever we have population, the first step in inferential statistics is to get a sample. And the procedure of getting sample is known as sampling. And random sampling is a procedure in which there is a probability or a possibility involved of individuals to be included in the sample. If the probability is involved for the individuals to be included in the sample, we use the term random sampling for that. In contrast to the random sampling, we have judgment sampling or other sampling plans we may have. The random sampling, there is not necessarily that all individuals in our population having equal probability to be included.
There is a possibility if all individuals in our population having equal probability to be included in the sample, that specific sampling technique is known as simple random sampling. So what is SRS? SRS is a sampling plan in which all individuals in my population having an equal probability to be included in my sample. That plan is referred to as simple random sampling, or I can use general term random sampling for it. But whenever I am talking about random sampling, it is not necessarily we sometimes the probability is same or not same. Now, parameter and statistic, these are the two important terms if we are dealing with the population. And I'm just completing this slide, parameter and statistics, by one example. And we are focusing upon the same population. This is the population involved all transaction in 2019. All transaction in 2019 in HBL server. The bank is fixed and year is fixed, HBL. Now these are what? These are the transaction amounts. I am considering only one variable, and that variable is what? That variable is transaction amount. We may have the several variable, but we are interested here in one variable. That variable is the transaction amount. So these are the amount transacted by the customers in 2019 at HBL server. All the transactions are recorded by the system. That is why basically it is the output of a census, because all transaction amounts I have in my that database. That is why I can say that all transaction amounts are there. We can say that it is a its population, and the procedure is known as census. Someone is asking about the random sample. Random sample means the elements include probability or elements have probability to be included in the sample. Suppose 5 students are selected from my class in such by a lottery method. Lottery method means what? It is about 60 students in the class right now, and I want to select 5 students randomly. So all students having a equal chance to be included in my sample, this is called random sample, right? Now I am giving an example of parameter and statistics. If refer to these transaction amounts, if I computed mean amount or mean transaction amount for all of these transactions, it is known as population mean. If I am interested to compute the variance of transaction amount of all of these transactions, then it is represented by sigma square. So all of you are familiar with the mean and variance. The mean is a parameter and variance is another parameter. So these are two parameters, and we can have further parameters we may have, but I'm just initially starting by these two parameters. So mu is what? Mu is just a mean. What mean? The mean amount of these transactions. So we have to add all the amounts in this population and then divide them by the as many numbers we have in the population. So that is called mean. This mean is computed for entire population. We use the term parameter for it. If we are computing the variance of these amounts, then we can use the term parameter for it, because these two measures are computed from entire population. Okay, these parameters are computed from entire population. In contrast to these transactions, I am interested to get a sample, random sample. Someone is again asking,
what is the difference between the simple random sample and the random sample. In simple random sample, probabilities are same. Suppose I selected, suppose these are the 1 million transactions. 1 million transactions in 2019 at HBL server. It is my population. The population size is represented by N, and N is equal to 1 million, I assume. 1 million transactions these are. Transaction amount is something other, but I am the number of observations in my population, or we can call it as a size of my population. The size of my population is 1 million. Size of population. Now I am interested in a sample, size of population. I am interested in a sample of 100 transactions, n is equal to 100. It is represented by small n. Small n is equal to 100. And if these 100 observations are selected purely on random basis in such a way that all transactions having equal probability to be included in this sample, we use the term SRS for it. SRS means equal probability to be included. Like if we are interested to get these 100 observations by some filters, what that filters are, suppose I am giving a twice probability to the transactions by female as compared to the transactions by male. So it is double probability of female to be included in the sample. And so we have to first bifurcate the transaction in two segments. One is the transactions of male, other is the transactions of female. And we have a double chance to be, so it is not equal probability. So we can use the term random sample for it. So in random sample, there is not necessarily the same probability. The probability may be vary, but in whenever we are specific to the simple random sampling, means the equal probability of all transactions. So now I have 100 transactions here, which I choose randomly from all of these 1 million transactions. From these 100 transactions, I am again interested in mean. This mean is represented by X bar. X bar is what? X bar is the mean of my sample. That is total of all transactions sigma X divided by 100. Sigma X divided by 100 is the sample mean. And if I am interested in computing the variance from this sample, it is represented by S square. This sample variance is known as a statistic. This sample mean is known as a statistic. This mean, which is a population mean, is known as a parameter. And this variance is a parameter. So it is not too difficult to learn. If I am describing the population by any descriptive measure, it is parameter. If I am describing a sample by any descriptive measure, it is statistic. Anyone have any query? You can ask right now. I am stopping my words, and you have to ask questions. Sir, what was the formula for mean? The sample mean. सैम्पल मीन का फार्मूला वही है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. देखिए फार्मूलाज में तो ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं, सिर्फ वेरिएंस के फार्मूले में फ़र्क है. पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूले में हम डिवाइडेड बाय एन करते हैं, सबको ही पता होगा आपको क्योंकि आप इंट्रोडक्शन टू पढ़ के आए हैं. और सैम्पल वेरिएंस के फार्मूले में बस हम सिर्फ n-1 कर देते हैं. अदरवाइज न्यूमरेटर दोनों फार्मूलाज का सेम है. और मीन का फार्मूला वही है, सम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. अगर मैं सैम्पल में कर रहा हूँ तो सम ऑफ माय सैम्पल ट्रांजैक्शंस डिवाइडेड बाय 100. तो सैम्पल मीन का फार्मूला और पॉपुलेशन मीन का फार्मूला सेम है, only one difference, and that difference is what? It is computed for all observations in my population, and sample mean is computed by all observations in my sample. और वेरिएंस में मैंने आपको पहले भी पता होगा, ये डेफिनेटली आप इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हैं कि सैम्पल वेरिएंस में n-1 नीचे होता है डिनोमिनेटर में, जबकि पॉपुलेशन वेरिएंस में n नीचे होता है. ये आपको थोड़ा सा डिटेल्स आगे जाएंगे तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे n-1 क्यों होता है, लेकिन राइट नाउ इट इज़ इनफ. एंड दिस इज़ द नॉलेज all of you have up to now because it is not too difficult and all of you have a perception of these terms. जी सवाल को अगर कोई और है तो बताइए वरना मैं आगे बढ़ूंगा.
सर आगे बढ़ें। आगे बढ़े, ठीक है जी, थैंक यू। Sir, before we move on, can I ask you one question about the medium of the classes जो आपसे आगे होंगी from next week onwards हमारी online classes ही होंगी क्या? बेटा देखो, इट्स टोटली डिपेंड कि आज तो मुझे इतना समझ लो कि कफ और टेम्परेचर हो गया था कि मैं तो बस ले रहा हूँ क्लास, लेकिन ये कि मैं इतना भी नहीं था कि मैं वहाँ आ पाता। तो अगर मेरी तबीयत बेहतर होगी, अगर नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट क्लास तक, तो मैं आ जाऊँगा कि इन कैंपस। कितने लोग अभी इन कैंपस से अटेंड कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कैंपस? I am from campus. आप लोग उसी में बैठे हैं रूम में, या आप अपने हॉस्टल से या Library, sir. लाइब्रेरी से? Library. मसला फोर बैठे हैं। अच्छा देखिए, ऐसा कर लेते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम इन कैंपस या सारी की सारी ऑनलाइन, हम डिपेंड करेगा अपने अपनी सहूलत के साथ, जैसे कर सकेंगे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इन कैंपस को प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ फेस टू फेस जी। में ज़्यादा लर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई बुरा नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं, मैं आपको फुल अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, और एग्जाम्पल्स भी आपके सामने आ रही हैं, हर चीज़ आपके सामने है, और हर चीज़ रिकॉर्ड में भी आ रही है। ये भी इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हर चीज़ रिकॉर्ड में आ रही है, आप बाद में लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। Sir, some of us didn't जी Yes, sir. get Some of us the didn't email get the today जो आपने email. क्लास की भेजी थी ना, तो हम लोग I guess one section got it and one section did it because there's two sections combined, right? तो उस वजह से हम लोग को आधों को ईमेल मिली थी, आधों को नहीं मिली थी। नहीं, मैंने तो दोनों सेगमेंट्स को अलग अलग ईमेल भेजी है, ऐसा कैसे हो जाएगा? सर मुझे भी email नहीं मिली। ईमेल नहीं मिली थी हमारे वाले Sir, I got the सेक्शन link from my friend. अच्छा, सर email नहीं आई। वन बाय वन प्लीज़। अच्छा देखिए, मैंने तो ईमेल ईआरपी पे मेरे पास दो सेगमेंट्स बने हुए हैं। ईआरपी पे मैंने टेक्स्ट मैसेजेस ही भेजे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता टेक्स्ट मैसेजेस मिले हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं मिला टेक्स्ट मैसेज। तो लेकिन मैंने इसके साइमल्टेनियसली ना दोनों सेक्शंस के 45 स्टूडेंट्स हैं, उन सबको लिंक भेजा है, और जो टीए है उसको भी लिंक भेजा है, और तो वो उसने शेयर कर दिया होगा, तो इसलिए मेरी प्रॉब्लम। सर आप सर टी को बोल के WhatsApp ग्रुप व्हाट्सएप बनवा लें। जी फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। सर आई वाज सेइंग कि टीए को बोल के आप व्हाट्सएप ग्रुप बनवा लें, दैट इज मोर कन्वीनियंट। मैं करवा लूँगा इसको, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। ओके सर। नाउ मूविंग नेक्स्ट, ये फॉर्मल डेफिनेशन है, अब मैं स्किप करके आगे चला जाता हूँ। सैम्पल की फॉर्मल डेफिनेशन है, सेंसस की फॉर्मल डेफिनेशन है। अब कुछ पॉपुलेशन की एग्जांपल्स आ रही हैं, ये ठीक है। अब एक एग्जांपल इसमें आ रही है फ्रॉम ट्विटर, तो आप देख सकते हैं ट्विटर का एक सिंबल बना हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक पॉपुलेशन को। ऑल ट्वीट्स ऑन ट्विटर इन जुलाई 2018, इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ट्वीट्स, ओके। तो अब ट्वीट्स में लेकिन मसला क्या आता है, मल्टीमीडिया हमारे पास डेटा होता है। ट्वीट्स जो है वो टेक्स्ट भी हो सकती है, ट्वीट जो है वो आपकी पिक्चर भी हो सकती है, ट्वीट आपकी वीडियो भी हो सकती है, और ट्वीट आपकी ऑडियो भी हो सकती है। लेकिन जो भी ट्वीट्स आएंगी इन 2018, तो वो सारी की सारी ट्वीट्स जो हैं वो एक पॉपुलेशन बन जाएगी। तो वी कैन यूज़ अ टर्म population of tweets. Now the next one is all videos uploaded on YouTube in 2017. It is the population of videos. All movies on Netflix under the category of science fiction. It is the population of movies. ऑल बैंक ट्रांजैक्शन, ये पहली एग्जांपल मैंने दे दी थी आपको। ऑल पोस्ट ऑन फेसबुक्स बाय पाकिस्तानीज, तो अब इसमें देखें एक लिमिट और लगा दी। इसमें मैंने टाइम फ्रेम नहीं लगाया, लेकिन इसमें मैंने कांस्टेंट या फिल्टर लगाया है, कंट्री फिल्टर। तो दिस इज कॉल्ड फेसबुक पोस्ट बाय पाकिस्तानीज, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ फेसबुक पोस्ट बाय पाकिस्तानीज। लेकिन ये चूँकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है, तो हम इसको ये कहेंगे कि ये एक टाइम फ्रेम लगा दें हम, वो ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह ये है कि इतनी फेसबुक पोस्ट होंगी जब से फेसबुक बना है अब तक बाय पाकिस्तानीज, तो हम उसका सेंसस या डेटा लेना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है।
अच्छा, अब समवन इज आस्किंग अबाउट द नेटफ्लिक्स एग्जांपल होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस. हर एग्जांपल देखें होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी एक पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो होमोजेनियस होगा, किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो हेट्रोजेनियस होगा. ट्वीट्स की एग्जांपल लेते हैं. ट्वीट्स मल्टीमीडिया के हवाले से तो वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि ट्वीट्स अगर वो टेक्स्ट में हैं, अगर सारी की सारी ट्वीट्स सिर्फ टेक्स्ट में होंगी तो हम कह देंगे जी ये मल्टीमीडिया के हवाले से टेक्स्ट ट्वीट्स हैं, तो होमोजेनियस हो जाएंगी. लेकिन कुछ ट्वीट्स अगर वो टेक्स्ट में हैं बट सम अदर ट्वीट्स आर बाय पिक्चर्स और वीडियोस और तो ट्वीट्स मल्टीमीडिया के पर्सपेक्टिव में हेट्रोजेनियस हैं. लेकिन ऑल आर ट्वीट्स इन 18 जुलाई 18, तो दैट इज एन होमोजेनस फैक्टर. एक तो ट्वीट का होना ये एक होमोजेनस फैक्टर है जो इस पर्टिकुलर सर्वर पर आई है ट्विटर पर, और फिर जुलाई 18 आना ये भी एक होमोजेनिटी फैक्टर है. तो हमारे पास से वो ट्वीट्स होंगी जो इस बाउंड्री को फोकस किए हुए होंगी. ओके, टीए अगर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, मैंने उनको लिंक भेजा हुआ था, बहरहाल पता नहीं है नहीं, आगे देख लेंगे इसको. आगे चलते हैं जी. तो ये होमोजेनियस का सवाल इन्होंने अच्छा किया, लेकिन ट्वीट्स और पर्सपेक्टिव में भी हेट्रोजेनियस हो सकती हैं. आप बता सकेंगे कि व्हाट अदर पर्सपेक्टिव्स आर देयर फॉर हेट्रोजेनिटी अदर देन द टाइप ऑफ ट्वीट्स लाइक मल्टीमीडिया और जी. सर एज से हम You कर said सकते earlier हैं about Just raise your hand, I will give you the opportunity. Sayam, जी, you can ask. sir, you said earlier about the hashtag thing. आपकी आवाज काफी कम आ रही है बस मुझे सर. अच्छा, okay, I will try to speak loudly. जी, can Sam you say about heterogeneity, other factor of heterogeneity in these traits? Sir, you also shared that thing about the hashtags where we just use them hashtag and whenever we click that तो हमारे पास जितने भी उसके जो ट्वीट्स होते हैं वो एक साथ एक ही जगह पर आ जाते हैं. So this is also May give an some example of heterogeneity in that. Suppose some tweets are related with IK, some tweets are related with the religious activities, some tweets are related with some other. So that is an heterogeneity factor in all of these tweets. सिर्फ ये 2018 की tweets की बात हो रही है कि in this population we have an heterogeneity factor with respect to some tags. Other factors of heterogeneity are size, tweet size. Some tweets are very small, like a thumb up or thumb down, but some tweets are having very high MBs in servers. So that is another heterogeneity factor to कि जी अब उसमें उसका साइज कितना है ये, ठीक है. तो ये थोड़ा सा इसमें एक हेटेरोजेनिटी फैक्टर है. इसके अलावा में एक और हेटेरोजेनिटी फैक्टर्स भी है कंट्री वाइज, क्योंकि इसमें मैंने कोई कंट्री की लिमिट नहीं लगाई हुई है, तो डिफरेंट कंट्रीज से ट्वीट्स आ रही हैं, दैट इज एन हेटेरोजेनिटी फैक्टर्स. और डिफरेंट एज ग्रुप से ट्वीट्स आ रही हैं, ये भी एक हेटेरोजेनिटी फैक्टर है. तो इस तरह से बहुत सारे हेटेरोजेनिटी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है जी. To gender is someone is saying gender is a heterogeneity factor, right? Now come to the जी Netflix. इस एग्जांपल में हेटेरोजेनिटी फैक्टर्स को डिस्क्राइब कीजिए. Sir, the science fiction column is a heterogeneity factor. नहीं, ये तो मैंने फिक्स कर दिया ना, ये तो होमोजेनियस हो गया. ये तो जो मूवीज मैंने गैदर की अपनी पॉपुलेशन में, ऑल दीज आर द साइंस फिक्शंस, तो दिस इज एन होमोजेनिटी फैक्टर. लेकिन अगेन द साइज ऑफ मूवी, द रेटिंग ऑफ मूवी, year it was released, then the length of movie, that may cause heterogeneity factors. ठीक है, कि साइज ऑफ मूवी कि वो कितने MB की है वो मूवी. अगर वो छोटी मूवी है 9-10 मिनट की है तो उसको हम एक स्मॉल ड्यूरेशन में रख देते हैं, एक हम मिडिल लेंथ मूवीज में रख देते हैं, एक हम हाई लेंथ मूवीज में रख देते हैं. तो ये एक हेटेरोजेनिटी फैक्टर आ जाता है ये, ठीक है. मूविंग नेक्स्ट. अच्छा, नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब सम सैम्पल्स इन दीज एग्जाम्पल्स. अब मैं यहाँ पे ओपन छोड़ रहा हूँ, ये सिंबल्स बने हुए हैं, इन सिंबल से देख के आपको आइडिया करना है कि ये किसके बारे में हो रहा है. ये वही पॉपुलेशन यूज करनी है जो प्रीवियस ट्विटर के ऊपर अभी मैंने दी थी. मिसाल के ट्विटर की एग्जांपल मैंने दी थी ऑल ट्वीट्स इन 2000 जुलाई 2018.
अब इसके लिए एक सैंपल डिस्क्राइब करना है आपको। जी, just raise your hand. I will give you the opportunity to describe. Sir, can you repeat the question? You have to describe a sample of the tweets in July 2018. Ji, Abiha. Sir, all tweets from like USA Huh? can be a sample. Like Right. all tweets from particularly from USA. Yes, you are right. Because the country is not defined in this population. So the tweets in July 2018 from US citizens is a sample. Or tweets by female in July 2018 is a sample. The tweets in text format is also a sample. तो हम बहुत सारे constraint लगा के sample की तरफ जा सकते हैं ये, ठीक है। बस मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। Randomly selected tweets on Twitter in July 2018 having the text IK. जो उस 2018 में शायद इलेक्शन वगैरह हुआ था, तो उस वक्त ये ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था IK का, तो उस हवाले से ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि वो ट्वीट्स अब हमने अलग कर ली जिनमें IK का वर्ड या टेक्स्ट यूज़ हुआ है। वीडियोस अपलोडेड इन यूट्यूब बाय पाकिस्तानीज, ये सैंपल कर दिया। अब इसमें पहले पाकिस्तानीज इंक्लूडेड नहीं था, अब नाउ पाकिस्तानीज कर दिया आपने। और फिर मूवीज वॉच्ड बाय पाकिस्तानी ऑन नेटफ्लिक्स अंडर द कैटेगरी साइंस फिक्शन में सारी मूवीज थी। नाउ दोज मूवीज which watched by Pakistanis is now included in my sample. Bank transaction by female customer and Facebook post by Pakistanis. अच्छा, अब ये तो सब समझ में आ गया, पॉपुलेशन भी समझ में आ गई इन एग्जाम्पल्स में और सैम्पल्स भी समझ में आ गए। लेकिन अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसमें कोई एक वेरिएबल बताएं हर एक एग्जाम्पल में जो कि क्वांटिटेटिव हो, और फिर उसके लिए पैरामीटर को और स्टेटिस्टिक को डिस्क्राइब करें। जी सर, आप एक दफा बता देंगे क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव तो नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, जैसे ट्वीट टाइप इज क्वालिटेटिव बिकॉज सम ट्वीट्स आर इन टेक्स्ट, सम आर इन वीडियो, सम अदर इन पिक्चर्स एंड ओके सर। सम आर इन ऑडियोज, तो दैट इज बेसिकली क्वालिटेटिव, राइट? Sir, could you please repeat your question again? क्वेश्चन रिपीट करूं? जी sir. Okay, my question is, in this sample over the previous slide, number 1 is the population. So number 1 here is the population and number 1 here is the sample. ये दोनों अब आपके सामने आ गए। अब आपको एक वेरिएबल चूज करना है और उस वेरिएबल के पर्सपेक्टिव में पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स को फोकस करना है। आप अनम्यूट कर लीजिएगा और फिर बताइएगा। जी, उबैद सिद्दीकी का रेज हैंड है, आप उबैद आंसर दे सकते हैं। जी, उबैद सिद्दीकी। नावल लोधी। Sir, it can be the number of characters in each tweet. Right, very good. Number of characters if it is a text tweet. तो इसमें हम अगर जनरलाइज कर दें ना, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बजाय द Sir, साइज। already random sample हमने यूज ही किया था जिसके अंदर ऑलरेडी टेक्स्ट आई के था, तो फिर that makes it already a text tweet, right? You are right. तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक मैं इसमें सैंपल में तो ले सकता हूँ, लेकिन पॉपुलेशन में मैं ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन यूं नहीं कर सकता, क्योंकि पॉपुलेशन में हमारे पास टेक्स्ट ट्वीट्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, वीडियो ऑडियोज भी हैं। तो हम इसमें एक जनरलाइज फैक्टर रख लेते हैं, वो है साइज इन एमबीज। तो साइज इन एमबीज, तो अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ये 10 मिलियन ट्वीट्स हैं, पहली ट्वीट, सेकंड ट्वीट, थर्ड ट्वीट, 2018 की सारी ट्वीट्स, ये तो पॉपुलेशन हो गई। और फिर ये हो गई 2018 की IK वाली ट्वीट्स, ये सैंपल हो गया मेरा। अब हमने वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन लिया है, वो हमने लिया है साइज इन MB ऑफ द ट्वीट। वो जो ट्वीट है उसका साइज कितना है MBs में। सम ट्वीट्स आर 1 GB, 100 MB, 100 GB, वो हर एक का अलग अलग साइज होगा। ये नंबर्स में क्वांटिटेटिव वेरिएबल आ गया, ये साइज क्या है इसका। तो अगर मैंने इनके साइजेस का मीन निकाल लिया, तो मीन साइज ऑफ ट्वीट इन सैंपल
is a statistic and the mean size of tweet in my population is a parameter. तो बहुत मुश्किल लफ्ज नहीं है, देखें बहुत आसान है, सिर्फ परसेप्शंस हैं, वही मीन की बात हो रही है, कोई और बहुत मुश्किल चीज की बात नहीं हो रही. लेकिन परसेप्शंस क्या हैं? परसेप्शन ये है, इफ यू आर कंप्यूटिंग द मीन in a population we use the term parameter. If you are computing the mean in a sample we use the term statistic, not statistics. s नहीं लगाना इसके अंदर आपको, ठीक है. If I am computing the variance of tweet size then it is another parameter. So this is one parameter, this is another parameter. If I am computing the variance in sample of these tweet size, then it is another statistic. So I have defined the two statistics here and two parameters here. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछें, otherwise moving next. Sir, can you repeat this? Okay. देखिए, इसमें आपने जब भी कोई पॉपुलेशन या कोई सैंपल कंसिडरेशन में लाएंगे तो उसके बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं. जिस हाल के तौर पर हमने पहली एग्जांपल ली थी ट्वीट्स की. अब मैं ट्वीट्स के वेरिएबल बता रहा हूँ आपको जो हो सकते हैं. ट्वीट आईडी, सबसे पहले तो ये होता है ट्वीट आईडी, ठीक है ना. ये तो ट्विटर खुद ही जनरेट कर लेता है, जो भी शख्स ट्वीट करता है उसका कोई आईडी जनरेट हो जाता है. फिर इसके बाद है वो जो कस्टमर आईडी, जिसने ये ट्वीट किया है उसका भी तो कोई वो होगा ना, जिसको आप ट्विटर अकाउंट का यूआरएल कहते हैं. तो कस्टमर आईडी क्या है वो भी आ जाएगा. कस्टमर लोकेशन भी वो ट्विटर खुद ही रिकॉर्ड कर लेता है, आपकी लोकेशन क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, वो कस्टमर लोकेशन भी आ जाएगी. तो इस तरह से हर ट्वीट के बारे में ट्विटर के पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है. इनमें से मैं एक को कंसीडर कर रहा हूँ इस वक्त, वो है साइज ऑफ ट्वीट. तो ये जो साइज है, ट्वीट साइज, ये क्वांटिटेटिव है. और इस क्वांटिटेटिव में अगर मैं सारी ट्वीट्स का मीन ले लूंगा तो इट इज पैरामीटर. अगर मैं सैंपल ट्वीट्स का मीन ले लूंगा साइज के पर्सपेक्टिव में, इट इज स्टैटिस्टिक. अगर मैं वेरिएंस कंप्यूट कर लूंगा ऑल ट्वीट साइजेस का इन पॉपुलेशन, तो आई यूज द टर्म पैरामीटर फॉर इट. अगर मैं सैंपल में इसी को करूंगा, बस फर्क क्या होगा, देखिए ये एक्सेल शीट बनी हुई होगी मेरे पास, वो छोड़े वाले हैं उसके अंदर नहीं जाते. मैं देखो आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें, अगर अननेसेसरी गुफ्तगू इसमें आएगी तो मुश्किल होगा मेरे लिए. तो अगर हम सारी ट्वीट्स को कंसिडर किए हुए हैं तो ये आपके पास जो है ये पॉपुलेशन है, और अगर हम सैंपल के ऊपर करे हुए हैं तो ये. लेकिन जब हम बात करेंगे पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स की, तो वी हैव टू बी फोकस ऑन अ सिंगल वेरिएबल or one or two variable at a time. If we are considering only one variable, it is called univariate analysis. If I am interested to analyze the two variables at a time, we use the term bivariate for it. So multivariate means what? We are analyzing the multiple variable at a time. So we call it as a multivariate analysis, right? आगे बढ़ते हैं जी, बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल हो चुकी है. Simple random sampling is a technique in which the element have equal chance to be included in sample. इस पे बात हो चुकी है अभी. Sample selected this way is called simple random sampling. A random sample allow chance to determine its element. यानी probability जहाँ होगी वहाँ random sample की term इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. Sampling की different techniques होती हैं. इसमें 3 टेक्निक्स मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिक कर दी हैं. One of them is simple random sampling. As earlier defined, simple random sampling is a technique in which all elements having equal probability to be included in the sample. ठीक है, और probability is same. Suppose I have 10 students here. Probability is 1/10 of one student to be selected in the sample. मैं lotteries बना लूँ 10 students की, and selecting one lottery out of the 10 after shuffling, the probability is 1/10 for all students to be included in the sample. But random sampling is generally applied whenever we have homogeneous population. If the population is homogeneous with respect to some factor, we can apply simple random sampling. क्योंकि जब एक जैसी हैं ये सारे लोग तो मैं equal probability लगाऊंगा ना. अगर मेरे पास कोई heterogeneity factor है, अब वो heterogeneity factor gender wise भी हो सकता है. मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 स्टूडेंट क्लास में हैं,
और 10 स्टूडेंट में से 8 जो हैं वो बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं, और मुझे सैंपल लेना है 3 स्टूडेंट्स का। ठीक है, सैंपल लेना है 3 स्टूडेंट्स का, तो होगा क्या, 1/10 तो है वैसे प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं अगर ये रखना चाहूँगा ना 1/10, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि गर्ल विल नॉट बी सिलेक्टेड इन माय सैंपल, क्योंकि उनकी तादाद ही कम है। तो मैं इसको अगर एक हेटेरोजेनिटी लगा देता हूँ मेल फीमेल की, और मेल फीमेल में से मैं ये करता हूँ कि 2 बॉयज सेलेक्ट कर लेता हूँ और 1 गर्ल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। So in a stratified sampling, we have to bifurcate the population with respect to the factor of heterogeneity, and then separately select the sample from the all heterogeneous segments, and then combine the sample. Is this okay? सर एक दफा वापस No, रिपीट sir, Yes, it's sir. a bit Sir, unclear. I Can have a you? question. अच्छा देखिए, पहले मैं रिपीट कर दूं फिर इसके बाद। ये बॉयज़ और गर्ल्स का मैंने सेगमेंट बना दिया। ये गर्ल्स कम है क्लास में, बॉयज़ ज़्यादा हैं, और हो सकता है रिवर्स हो इसका कि गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ कम है। अब मैं सिंपल रैंडम लगाऊंगा तो क्या होगा, तो चूंकि बॉयज़ ज़्यादा हैं, ये बॉयज़ का सेगमेंट है, ये गर्ल्स का सेगमेंट है। अगर मैं इस पर SRS लगा दूंगा ना, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ज़्यादा मेरे सैंपल में बॉयज़ ही आएंगे, क्योंकि उनकी उनकी मेजॉरिटी है। तो अगर आई वांट टू सेलेक्ट अ सैंपल इन विच द बोथ जेंडर्स हैव अ रिप्रेजेंटेशन, तो फिर मैं इसमें SRS ना करूं, फिर मैं इस पर स्ट्रेटिफाइड कर लूँ। स्ट्रेटिफाइड में क्या करते हैं हम, स्ट्रेटिफाइड में सेगमेंटेशन कर देते हैं, बॉयज़ का डेटा अलग कर देते हैं, गर्ल्स का अलग कर देते हैं। यहाँ से मुझे टोटल 3 का सैंपल निकालना था, तो मैं क्या करूं, रैंडमली 2 बॉयज निकाल लूं, इनमें इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी बॉयज में। विद इन द बॉयज वी हैव अ इक्वल प्रोबेबिलिटी, विद इन द गर्ल्स वी हैव अ इक्वल प्रोबेबिलिटी। 2 बॉयज आर selected randomly and a girl is selected randomly. This technique of simple random sampling within the stratum is known as stratified sampling। यानी मैं कर तो देखें simple random sampling ही रहा हूं, लेकिन is this time I am doing the simple random sampling in segments which were bifurcated with respect to the factor of heterogeneity. That is why the technique is stratified. तो stratified is a purification in simple random sampling. इसमें ये advancement है, समझिए आप, random sampling की advancement है, ये भी random है। Stratified is also called a random sampling but after segmentation. ठीक है? So, sir, that means अगर हमारे पास 2 segments हैं और originally we were taking a sample of 50 people, तो फिर हम लोग each segment में से 25 का sample लेके उसको combine कर देंगे। अच्छा देखें, ये ज़रूरी नहीं है 25-25। अगर हमने 25-25 ले लिए, इसको कहते हैं हम इक्वल अलोकेशन। लेकिन अगर सेगमेंट्स बराबर हैं, जैसे इक्वल मेजॉरिटी है बॉयज़ और गर्ल्स की, जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, तो मैं फिर इस पे इक्वल का लगा दूं कि 25-25 ले लूं। लेकिन अगर मेरे पास जैसे इस केस में मैंने बताया बॉयज़ ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी में हैं, और गर्ल्स कम है, तो सैंपल मुझे 3 का चाहिए। तो मैं फिर ये ना करूं कि भाई मैं ज़ाहिर है बॉयज़ मेजॉरिटी में है उनका बड़ा सैंपल लूं, और जो गर्ल्स माइनॉरिटी में है उनका मैं स्मॉलर सैंपल लूं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इक्वल लूं, मैं इसको प्रोपोर्शनल कर दूं, प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द स्ट्रेटम। स्ट्रेटम हम ग्रुप को कहते हैं, जो 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, ये स्ट्रेटम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हम हर स्ट्रेटम के साइज को देखकर साइज ऑफ सैंपल को स्प्लिट कर देते हैं। ये जी ठीक है, इज ओके। नाउ सिस्टमैटिक। अच्छा, इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग we have to segment the population before sampling. Suppose I am giving one example from errors on a book per page. Average, my objective is what? To estimate the average number of errors per page. Errors per page in a book. In a book. एक book है, तकरीबन उसमें 1000 pages हैं, तो I am interested to find the average number of errors per page in the book. अब स्ट्रेटिफाइड सिंपल भी कर सकता हूँ। सिंपल में क्या करूँगा, सिंपल रैंडम में रैंडमली कुछ पेजेस सिलेक्ट कर लूँगा बाय लॉटरी मेथड, फिर उन पेजेस में जाकर एरर डिटेक्ट करूँगा। पहले पेज पे कितने एरर थे, दूसरे पेज पे कितने एरर थे, एरर्स काउंट करूँगा,
तो इस तरह अगर मैंने 100 पेजेस का सैंपल दिया है तो मेरे पास 100 एरर्स आ जाएंगे, फिर मैं इसका मीन निकाल लूँगा तो ये सैंपल मीन कहलाएगा, स्टैटिस्टिक हो जाएगा ये। लेकिन अगर मैं इसको सिस्टमैटिक से करना चाहता हूँ तो इसका तरीक़ाकार ये है, अगर मैंने 100 का सैंपल लिया है, या 100 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 10 का सैंपल ले रहा हूँ, और पेजेस, टोटल पेजेस कितने हैं बुक में? 1000। अब मैं 1000 पेजेस को 10 से डिवाइड कर दूँ तो एक सेगमेंट बनेगा, वो बनेगा 100 का। 1000 डिवाइड बाय 10 कर दूँ अगर मैं, तो 100 का सेगमेंट बनेगा। अब पहला सेगमेंट हो गया 1 से 100 तक का, दूसरा सेगमेंट हो गया 101 से 200 तक का, एंड सो ऑन। लास्ट सेगमेंट हो गया 901 से 1000 तक का। तो ये 100,000 पेजेस पूरे हो रहे हैं, आप देखें। अब मैंने सेगमेंट्स बना दिए ये, बट दीज सेगमेंट्स आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू द हेटेरोजेनिटी फैक्टर। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, सीरियल ऑर्डर में सेगमेंट्स बनाए। कुछ इसमें बाइफर्केशन हेटेरोजेनिटी फैक्टर की वजह से नहीं है। अगर ये बाइफर्केशन हेटेरोजेनिटी फैक्टर की वजह से होती तो फिर मैं इसे स्ट्रेटिफाइड कहता, फिर सिस्टमैटिक नहीं कहता। बस ये है बाइफर्केशन कैसे साइजेस के लिहाज से कर दी मैंने। 1000 पेजेस थे, 10 पार्ट्स में स्प्लिट करना था, 100 के मैंने 10 पार्ट्स बना लिए ये, रिगार्डलेस एनी कैरेक्टरिस्टिक्स और रिगार्डलेस एनी फंक्शनैलिटी। अच्छा, अब ये जो सेगमेंट्स बन गए, मुझे सैंपल साइज कितने का रखना है? 10 का। एक एलिमेंट मैं लूंगा पहले सेगमेंट से, यहाँ से एक एलिमेंट लूंगा, एक एलिमेंट मैं यहाँ से लूंगा, और एक एलिमेंट मैं यहाँ से लूंगा, रैंडम सैंपल के तौर पर। सिस्टमैटिक, सॉरी रैंडम नहीं, सिस्टमैटिक। अब मैं ये कैसे एक एक एलिमेंट निकालूंगा वो समझिए आप। सिस्टमैटिक में आप लॉटरी बनाइए 1 से 100 की, 1 से 100 की लॉटरीज बनाइए। एक लॉटरी वेल शफल करने के बाद ड्रॉ कर लीजिए, कौन सा नंबर आया? सपोज 97 आ गया, तो फर्स्ट एलिमेंट इज द पेज नंबर 97। तो व्हाट आई डू, I have to read the page number 97 completely and determine the number of error on page number 97. Suppose there are 2 errors on page number 97. अच्छा, सेकंड सेगमेंट से भी मुझे एक पेज पढ़ना है, कौन सा? Can anyone of you tell me what segment, what page I have to read from segment 2? No one? 1 से 200। नो, 101 से 200 को रैंडम नहीं करना, इसको सिस्टमैटिक में करना। ये है, अगर पहला रैंडम करते हैं बस सिर्फ इसमें, ये फर्स्ट वन तो मैंने रैंडम किया था ना, अब यहाँ से हमें 197 लेना है, बस सिस्टमैटिक यही है। 197 को रीड करें और इसमें कितने एरर हैं, सपोज कोई नहीं है। फिर उससे अगले सेगमेंट में 297 को रीड करें और उसमें कितने एरर हैं, सपोज एक एरर है। और आखिरी सेगमेंट में भी 997 को रीड करें, उसमें कितने एरर हैं, सपोज 5 एरर है। अब ये जो नंबर ऑफ एरर्स आ गए, इनको आप ऐड करें और 10 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 10 है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक और पैरामीटर। व्हाट इज इट? इज इट अ स्टैटिस्टिक और इज अ पैरामीटर? Statistic, because it is computed from sample. अब बताइए सिस्टमैटिक समझ में आ गया या और we have to do something further explanation of systematic sampling? देखिए, सिस्टमैटिक में एक एलिमेंट रैंडम होता है, पहला वाला, बाकी सारे सब्सीक्वेंट सिस्टमैटिकली सेलेक्ट होते हैं। अगर पहला वाला मैंने जो रैंडमली निकाला था 1 से 100 के इन बिटवीन, अगर वो 5 आ जाता, तो 5 अगर वो आता तो फिर मैं लेता 105, 205, 305, 905। इन पेजेस को मैं रीड करता और एरर डिटरमिन कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो ये सिस्टमैटिक है। इन द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वी हैव टू बाइफरकेट द पॉपुलेशन इनटू द सेगमेंट रिगार्डलेस ऑफ हेटेरोजेनिटी फैक्टर, बट इक्वल partitioning. It is equal partitioning into the as many sample elements we have to draw. According to that, one element is selected randomly by lottery method, then remaining will be systematically judged.
सर सेगमेंटेशन किसी बेसिस पर होती है या नहीं 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 नहीं, सेगमेंटेशन का सिर्फ एक प्रोसेस था जो मैंने बताया। 1000 पेजेस टोटल थे और मुझे 10 का सैंपल बनाना था, यानी मुझे 10 पेजेस बस रैंडमली पढ़ने थे। तो 100 के उसमें हाँ कर बस लिया ना। मैंने इसकी बेस, तो ये बेसिकली सेगमेंटेशन जो है ना वो सीक्वेंशियल ऑर्डर होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो बेसिस पे होती है। यहाँ पे वो हेट्रोजेनिटी की बेस, ये भी सेगमेंटेशन है, ये भी सेगमेंटेशन है। यहाँ सेगमेंटेशन जो है वो हेट्रोजेनिटी, यहाँ सेगमेंटेशन है ही नहीं। तो बहुत आसान है, देखें इतना मुश्किल नहीं है। ये थोड़े से टेक्निक्स हैं जो सर तो जिस तरह आपने कहा था कि स्ट्रेटिफाइड में जो है वो क्या कहते हैं, अभी आपने वर्ड यूज किया था इक्वल एलोकेशन नहीं होगी, सिस्टमैटिक में इक्वल एलोकेशन ही हो रही है ना इन केस, नहीं मतलब नहीं, जब उसको डिवाइड करते ये हैं। तो देखें इक्वल एलोकेशन और अनइक्वल एलोकेशन तो वो स्ट्रेटिफाइड में आती है। अगर मेरे सेगमेंट्स बराबर साइज के हैं, 3 सेगमेंट्स बनाए, तीनों का साइज बराबर है, तो मैं इक्वल एलोकेशन करूं। यहाँ से भी 25 का सैंपल लूं, यहाँ से भी 25 का सैंपल लूं, और यहाँ से भी 25 का सैंपल। लेकिन ओके अगर ओके, यानी एलोकेशन जो है वो व्हेन ड्राइंग सैंपल्स कर रहे होते हैं तो एलोकेशन जी, उस अब उसका इसमें तो बाय बाय मेथड ही इक्वल बनी है ना, सेगमेंट्स इक्वल साइज के सेगमेंट बने, तो इसमें तो फिर वो इक्वल है, तो बस एक एक करके ड्रॉ होगा उसके अंदर से। तो स्ट्रेटिफाइड में हम सोचते हैं कि इक्वल या अनइक्वल, इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्ट्रेटम। इफ योर स्ट्रेटम हैज अ स्मॉलर साइज, तो स्मॉलर साइज ऑफ सैंपल इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम देयर। इफ योर स्ट्रेटम हैज अ लार्जर साइज, तो larger number of elements to be drawn from that population, that sample, फ्रॉम दैट सेगमेंट। सॉरी, ना सैंपल का वर्ड यूज होगा ना पॉपुलेशन का, सेगमेंट का वर्ड यूज होगा उसमें, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट। सर जी सर, अगर हम बुक के टॉपिक्स की वजह से सेगमेंटेशन करते हैं तो वो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी, बुक के टॉपिक की वजह से कर लें। क्योंकि वो फैक्टर ऑफ हेट्रोजेनिटी है ना, जो टॉपिक्स हैं बुक के। नहीं, बुक में पेजेस पे तो कोई टॉपिक नहीं होते ना, या ऐसा है चैप्टर वाइज कर लें, हाँ तो हेट्रोजेनिटी हो जाएगी, ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज। स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा ना, स्ट्रेटिफाइड हाँ सैम्पलिंग हो वो जाएगी, क्योंकि हम स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। हर चैप्टर से मैं पाँच पाँच पेजेस पढ़ूंगा, हर चैप्टर से 5 पेजेस पढ़ूंगा। अगर मैंने ये लगा दिया तो सिस्टमैटिक नहीं होगा। फिर वो चैप्टर वाइज, चूंकि बुक डिफरेंट उसमें आई हुई है, किसी चैप्टर में 100 पेजेस हैं, किसी में 50 पेजेस हैं, किसी में 200 पेजेस हैं, तो उसमें वो अनइक्वल प्रोसेस हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन कोई और हेट्रोजेनिटी फैक्टर भी हो सकता है। यहाँ तो मैंने साइज ऑफ चैप्टर ले लिया कि कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, तो ये हेट्रोजेनिटी का फैक्टर है। लेकिन कोई और भी वजह हो सकती है हेट्रोजेनिटी की, ठीक है, इस अदर देन दिस वन। तो सिस्टमैटिक में कोई कॉज नहीं होती स्प्लिट करने की, बस सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में कॉज होती है स्प्लिट करने की, जिस जो हेट्रोजेनिटी फैक्टर होता है उसकी बेसिस पे स्प्लिट करते हैं। और रैंडम में चूंकि सारे एलिमेंट होते ही होमोजेनस हैं, तो फिर हमें स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं होती। हम सबको अलाइक अज्यूम करके इक्वल प्रोबेबिलिटी या अनइक्वल प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर अलग कर लेते हैं इसको, ठीक है, सैंपल को अलग कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत पॉपुलर टर्म थी और ये बहुत देर से डिस्कस हो रही थी। पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस, पॉपुलेशन कोरिलेशन, सैंपल कोरिलेशन, प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन। इफ एनीवन हैव एनी, दो तो मैं बार बार 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू बता चुका हूँ। ट्वीट्स, ऑल साइज ऑफ ट्वीट्स in all population is mu, and the size of average number of letters or the elements in the tweets in sample x bar। अच्छा, लास्टली इस स्लाइड पर मैं सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन, कोरिलेशन में मैं ज्यादा बात यूं नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी हम आगे जाके कर लेंगे। लेकिन ये p जो नजर आ रहा है आपको, ये लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल चीज है जी। ये p प्रोपोर्शन को बोलते हैं। कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन द वर्ड प्रोपोर्शन? Is quite simple. Class 8, class 9, proportion. Yes, yes, I am. Can we have dependability on another variable? Yes, it can be the probability. Ji Hassan Raza. Sir, the proportion is the rate at which something increases or decreases. Rate. The rate at In which something respect to increases or another decreases. variable ना, देखिए, when मैं it's मिसाल with के that तौर पर relation अभी to एक variables. एग्जांपल आपको दी थी मैंने। वो एग्जांपल थी, ये हमारी पॉपुलेशन है, क्लास है हमारी। इस क्लास में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब बॉयज़, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी बॉयज़
इसमें कितने हैं, वो B हैं. B is what? B is the number of boys in my class and G is what? G is the number of girls in my class. तो ये जो इस वक्त 68 की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, इसमें से गर्ल्स G जो हैं वो आपके नंबर ऑफ गर्ल्स हैं अभी. अच्छा, मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज इन माई क्लास, तो मैं यूँ लिखूँगा, इज जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज इन माई क्लास is B divided by G plus B. This is proportion. यानी हमें डिनोमिनेटर में स्ट्रेंथ रखनी होती है, ये प्रोपोर्शन में होता है. रेशियो में क्या होता है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो G is to B. This is called ratio of boys and girls. This is called proportion of boys in my class. Similarly, I can compute the proportion of girls in my class by 1 minus probability of boys. All of you are familiar with this. तो ये प्रोपोर्शन जो है ये बेसिकली क्वालिटेटिव के ऊपर लगाते हैं हम. प्रोपोर्शन जनरली हम क्वालिटेटिव, लेकिन क्वांटिटेटिव पे भी लगा सकते हैं. Can any one of you give an example of proportion in the bank transaction amount example? These are the transactions. वही एग्जाम्पल जो अभी हमने पढ़ी थी, इसमें प्रोपोर्शन को कोई फिट करके बताइए, इसमें प्रोपोर्शन कैसे फिट हो रहा है. You can raise your hand if you have the answer. Okay, Hasnan Jafri, you can answer. Sir, 1 million से ऊपर की transactions. Very good, very good. That the same idea I was thinking. The probability of the transactions whose amount is more than 1 million. ये मैंने अब मैं इसमें काउंट कर लूँ कितनी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनकी अमाउंट 1 मिलियन से बड़ी है, उनको मैं ऊपर लिख लूँ. ये वो ट्रांजैक्शन है जो 1 मिलियन से अबव हैं, A, और टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हैं, N. तो A अपॉन N अगर मैं कर दूंगा, दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस हैविंग द अमाउंट मोर देन 1 मिलियन. तो ये प्रोपोर्शन की क्वांटिटेटिव पे हम प्रोपोर्शन लगा सकते हैं, एज वाइज लगा सकते हैं, या मैंने ट्रांजैक्शन अमाउंट वाइज प्रोपोर्शन लगा दिया है. इस तरह से हम प्रोपोर्शन को लेकिन प्रोपोर्शन बेसिकली क्वालिटेटिव में आता है. ये जो प्रोसीजर्स हैं इसके, वो अमूमन हम इसको क्वालिटेटिव में इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया था जितनी क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं वो क्वालिटेटिव डेटा पर भी लग सकती हैं, क्वांटिटेटिव डेटा पर भी लग सकती हैं. लेकिन जितनी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं उनको हम सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल्स पर या डिस्क्रीट वेरिएबल्स पर लगा सकते हैं, उनको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पर नहीं लगा सकते. ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एक्यूरेट हैं एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव टेक्निक्स. अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये सब चीज़ें अब आपको समझ में आ गई हैं, अब ये मैं सब आगे बढ़ा रहा हूँ. अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं. हम यू हैव टू रीड दिस एग्जाम्पल एंड देन आई विल कंप्लीट दिस इन एक्सेल हियर. आप लोग पढ़ लें इसको थोड़ा सा. आई एम गिविंग यू द 1 minute टाइम. You read the example and then I will complete this example in Excel. In Excel, firstly I have to copy the data from PowerPoint over that slide. I'm just copying from there. You can't see that process because at your screen the Excel was shown. Now I am pasting this data here in Excel. तो आप ये प्रोसेस समझिएगा कि कैसे पेस्ट होगा. ये मैं जस्ट पेस्ट प्लेस कर रहा हूँ, ये आ गया. अच्छा, ये आप डेटा देखें मिक्स हो गया. डेटा कैसे मिक्स हो गया, ये इसमें कॉलम्स तो बन गए, लेकिन ये ERP इधर से इधर चला गया, कुछ मिसमैचिंग्स हो गई है. समटाइम्स जो है ना वो टेक्स्ट में भी चला जाता है, ये भी होता है समटाइम्स. मैं दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ, देखें आपके सामने.
ये मैं पेस्ट में गया और पेस्ट में ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो एज इट इज़ आ रहा है, ये ज़्यादा बेटर है आई थिंक। तो ये जो ERP नंबर्स हैं ये सब इधर हो गए और कुछ ERP नंबर्स जो हैं ये मिक्स भी हो गए, ये यहाँ आ गया, ये इसको मुझे अब वापस लाना होगा। ये तो इसको असल वेरिएबल ये है मार्क्स वाला, तो इसको मैं स्विच कर रहा हूँ, इसको मैं एक कॉलम में लाऊंगा, अलाइनमेंट्स करनी है आपको। यहाँ से इसे Ctrl+X किया। सर थोड़ा लाउडली बोलने प्लीज। Ctrl+V किया, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V, so that all the marks are aligned. Now ERP numbers, some of the ERP numbers are not appropriate, so you have to correct it. This is called data cleaning. ये आपको डाटा क्लीनिंग आपको समझ में आ रही होगी कि समटाइम्स डेटा मिसमैच हो जाता है या ओवरलैप कर जाता है या कम, ये अब ERP नंबर गलत आ गया इधर, इसको मैं यहाँ लेकर आऊँगा Ctrl+V। अब ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम हो गए, आई हैव टू रिमूव दैट 2 कॉलम्स। I think so this column is also be deleted. Marks out of 20. I think it should be extended. I will give you the chance to question, लेकिन अभी मैं इसको मुकम्मल कर लूँ। Now the data is fine. जी हसनैन जाफरी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। सर ये तो बहुत छोटा डेटा था, अगर ये बहुत सारी एंट्रीज होती तो इसी तरह कॉपी पेस्ट करने में तो बहुत टाइम हाँ, यू आर राइट कि डेटा छोटा था तो मैंने इस तरह कर लिया, लेकिन फिर मुझे कोई अलगोरिथम्स लगाने पड़ते, ठीक है ना। अलगोरिथम्स क्या लगाने पड़ते, यानी एक्सेल में वी हैव मैक्रोस, अगर इफ आई एम विलिंग टू डू दैट इन एक्सेल तो फिर मुझे मैक्रो बना के करने पड़ते कि समटाइम्स वी हैव अ सेल विच इज ब्लैंक एंड सम अदर सेल ऑन द लेफ्ट वी हैव अ नंबर, तो यू हैव टू टेक दिस, एक्सेल विल ऑटोमेटिकली टेक दैट नंबर फ्रॉम दिस कॉलम एंड प्लेस इट इन हेयर, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये सारा प्रोसेस इफ आई एम डीलिंग विद द मैक्रो। तो ये सारा लेकिन अगर मैं आर पे काम कर रहा हूँ तो मैंने बताया था वो ज़्यादा फ्लैक्सीबल है और उसमें मैं कमांड्स के थ्रू इसको कर लूँगा, वो सारा डेटा मुझे अलाइन कर देगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाफरी जो तुमने पूछा है, उसकी वजह ये है कि ये डेटा क्लीनिंग, डेटा हैंडलिंग इज वन ऑफ द बिग टारगेट फॉर स्टेटिस्टिशियंस एंड डेटा एनालिस्ट, ठीक है। तो ये लेकिन स्टेटिस्टिक्स में इसकी हमें इतना ज़्यादा हम सिखाते यूँ नहीं है कि हमारा तो वो प्रोसीजर सिखाने जो स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को डेफिनेटली ये साथ साथ लेके सिखाता हूँ क्योंकि आपको रियल लाइफ में मार्केट में जाकर ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो मैंने मैनुअल दिखा दिया, इंशाल्लाह किसी क्लास में मैं दिखाऊंगा कि ये टेक्स्ट टू कॉलम्स में कैसे लाते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम्स में कैसे स्प्लिट होता है, तो इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, अब मैं तो अभी सैम्पलिंग पे जा रहा हूँ, मैं उस प्रॉब्लम की तरफ वापस जा रहा हूँ जो मेरी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम भी मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आता हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम अभी नज़र ही नहीं आ रही होगी, स्क्रीन शॉट से ले आता हूँ। Just placing the problem here. This is the problem. Now you can see the data and the problem side by side. Now you have to draw size of population is what? Size of population is represented by n. It is 13. It's a very simple and a very short. Size of sample is what? Size of sample is represented by small n, and this is to be 5. So these two numbers are very important and you have to be very specific before selecting the samples. So your sample size and your population size. Size of population and this is size of sample. Now coming to the actual question. How to draw these 5 elements randomly from this class? Can any one of you suggest? जी
how I can draw randomly 5 students from this class without lottery method? सर एक्सेल Sir, में we can रैंडम का फॉर्मूला भी होता है. जी जी, देखें अगर लॉटरी मेथड से करते तो ये मैं 13 लॉटरीज बना लेता और उन 13 लॉटरीज में से मैं 5 लॉटरीज रेंडमली सिलेक्ट कर लेता, तो मेरे पास ये एलिमेंट्स आ जाते। लेकिन ये तो डेफिनेटली हमारा सही तरीका नहीं है। तो देखें हम क्या कर रहे हैं। ये एक तो ये जो कोड नंबर्स हैं, इन कोड नंबर्स को हम अज्यूम करें 2 डिजिट्स के, 01, 02। लेबल्स बनाने हैं ये, अभी इस वक्त ये लेबल्स नहीं है, दिस टाइम ये अभी नंबर्स हैं। और नंबर्स में क्या होता है, लीडिंग ज़ीरोज़ मैंने बताया था कि नंबर्स में से लीडिंग ज़ीरो एक्सेल खुद ही ख़त्म कर देता है। तो मैंने इसमें सब में ज़ीरो लगा रहा हूँ। ज़ीरो लगाने की रीज़न क्या है कि मैं आई जस्ट वांट टू कीप देम एज लेबल्स नॉट बाय नंबर्स। ये सब भी मैनुअल हो रहा है। और फिर अगेन आपके जहन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये सारा काम मैनुअल अगर करना है तो इट्स क्वाइट हेक्टिक, कि अगर मेरे पास थाउजेंड या 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं या डेटा है तो मैं कैसे करूँगा। तो यू हैव टू लर्न द एक्सेल इन डिटेल एंड ट्राई टू डू दैट, क्योंकि ये एक्सेल समझना और करना इस पर आप बहुत ज़रूरी है। नाउ कम टू द पॉइंट कि मुझे रैंडम नंबर्स निकालने 5। तो ये देयर इज़ अ फंक्शन रैंड बिटवीन इन एक्सेल is equal to rand between. There are the two functions, one function is rand, other function is rand between. So I have to choose rand between. In rand between, up to what limit I have to draw the random numbers? So I have to draw the random numbers from 1 to 13. So you have to pick 1 up to 13 and 9. The first element is Khizrul Rahman. Khizrul Rahman is my first element in the sample. Now I have to pick this formula and drag it to the 5 elements. The 2, 3, 4, 5. Now I सर have ये एक बार फॉर्मूला फिर से बता दें. rand between is a function which gives us an opportunity to draw the random numbers in between a specific range. So my range is what? 1 to 13, because I have 13 students in my class. If I have 1300 students in my class, so I have to use the function rand between 1 up to 1300. So whatever the number I will get will be in between the range. So now numbers will be in between the range only. Okay. Number 9 is the first element in my sample. अच्छा, sometime these random numbers will automatically be change अगर मैं कहीं पर भी कोई एक्सेल में चेंज करता हूँ। मिसाल के तौर पर देखें आप, ये अगर मैं यहाँ से कोई नया फंक्शन लगा देता हूँ तो ये नंबर रैंड बिटवीन के चेंज हो जाते हैं। वाई? आप देखें वो सब चेंज हो गए। मैं कोई और यहाँ लिख देता हूँ, वो सारे नंबर्स फिर चेंज हो जाएंगे। आप देखें कुछ और हो गए। वाई? और फिर मैंने डिलीट किए, वो फिर चेंज हो गए। तो रैंडम का पर्पस यही है कि एवरी टाइम इन एक्सेल इफ यू क्लिक अ सेल एंड टाइप समथिंग ओवर देयर, देन देयर इज अ फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन इन एक्सेल। एक्सेल क्या करता है, सेल नंबर 1 से लेकर यहाँ से लेकर और सेल नंबर लास्ट तक जितने सेल इसके होते हैं ना, ये इसको रिकैलकुलेट करता है, यानी उसमें उस फार्मूले को रिफ्रेश कर लेता है खुद ही। तो मेरा ये फंक्शन का फार्मूला हर दफ़ा रिफ्रेश होता है जब मैं यहाँ कुछ करता हूँ, तो इसलिए ये फिक्स ही नहीं रहते। तो इनको फिक्स करने का प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इनको फिक्स करने का प्रोसीजर ये है, अभी इसको तो मैं पहले तो इसका फॉर्मेटिंग कर दूँ थोड़ी सी, इसकी फॉर्मेटिंग ये कि अब देखें मैंने फॉर्मेटिंग की, फिर चेंज हो गया। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट में जा रहा हूँ, पेस्ट एज वैल्यूज़। जब मैं पेस्ट एज वैल्यूज़ जाऊँगा तो ये फिर चेंज नहीं होगा, ये पेस्ट एज वैल्यूज़ में आता है, ये अब फिक्स हो गया। अब चेंज नहीं होंगे, ये मैं डिलीट कर दूँ, इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। नाउ दीज आर द एलिमेंट्स। फिर मैं इसकी रीफॉर्मेटिंग कर लूँ, ये आ गया। फोर्थ इज़ अली फैज़ान। अच्छा, ये विद रिपीटेड हो रहा है,
एक और भी सैम्पलिंग के अंदर आपने वहाँ स्लाइड पे देखा होगा, देयर आर द टू टर्म्स, वन ऑफ देम इज कॉल्ड sampling by with replacement, sampling by without replacement. If I am interested in sampling by with replacement, so 11 will be taken 2 times. This is called sampling by with replacement. A name will be again selected. If I am interested to draw the sample by without replacement, then you have to discard the second 11 and pick the next number. So definitely that is, if it is again same, so you have to pick another number. So you have to draw the numbers according to the unique numbers you have. Now the marks of 4th student is 15 and the marks of 11th student is 16 and the marks of the 10th student is 13 and the second one is 15 and 11 means we have 16. Can you suggest me, ये तो मैंने फिर मैनुअल कर दिया कि यहाँ से मैं देखता गया 4 कहाँ आया, यहाँ आया, फिर मैं यहाँ गया, यहाँ से नंबर उठाया, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने. कोई और सोल्यूशन देंगे इसका कि मैं एक्सेल में इसको कैसे करूँ? लुकअप. जी, लुकअप फंक्शन. वी लुकअप. वेरी गुड. रोहन कुमार कौन आंसर दे रहा था अभी? रिदा. रिदा, सॉरी रिदा, वेरी गुड. इट इज वी लुकअप. मैं नेक्स्ट क्लास में कहीं टाइम मिलेगा कि मैं अभी टाइम वैसे भी ओवर होने जा रहा है. वी लुकअप फंक्शन यूज करूंगा ना, तो ये खुद ब खुद मुझे यहाँ से 4 सर्च करूंगा, ये नंबर उठाएगा, यहाँ खुद ब खुद रख देगा ये. तो ये क्योंकि ऑटोमेटिक करना चाहिए हमें सारे काम, हम मैनुअल की तरफ कोशिश. सर वी लुकअप के अलावा इंडेक्स और मैच भी तो यूज कर सकते हैं. अच्छा, मैंने यूज नहीं किया है, हो सकता है और फंक्शंस भी हों जो इस काम को करने में हेल्पफुल हो आपके. तो ठीक है, ये तो आप देखें ओपन एंड है कि आप जितनी चीजें लर्न कर सकते हैं कर लें. जी रोहन, कुछ कहना चाह रहे हो? आगे बढ़ें, चलें. अब हमें देखें पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करके इसको खत्म करते हैं लेक्चर्स को. हमें अब करना ड्रॉ, तो हो गया ये ड्रॉ रैंडम सैंपल 5 का, ये हो गया. अब विद रिप्लेसमेंट से हुआ है, याद रखिएगा. नाउ मीन टू बी कंप्यूटेड फॉर होल क्लास, the mean to be variance to be computed for the whole class, mean computed for the sample, mean computed variance computed for the sample. तो ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है. बस मुझे 2 मीन निकालने हैं, 2 वेरिएंस निकालने हैं. ये भी मैं डिलीट किए दे रहा हूँ. ये मेरा सैंपल है और ये मेरी पॉपुलेशन है. तो मैं मीन यहाँ से निकालूंगा. फंक्शन एक्सेल का है एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज नंबर्स. This is what? क्यों नहीं आया? स्पेलिंग. जी क्यों नहीं आया? कौन बताएगा? सर स्पेलिंग है? नहीं. सर स्पेलिंग. नो. सर वो नंबर्स जो है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर होंगे. तो स्पेलिंग में यही तो होगा. स्पेलिंग तो मैंने खुद सेलेक्ट ही नहीं की, तो ऑटोमेटिक एक्सेल ने दी है. एज इन नंबर्स इन वाले सेल्स का जो कस्टम फॉर्मेट होगा वो जनरल या नंबर पे नहीं होगा, टेक्स्ट पर सेट हुआ होगा. You are right. Who was speaking? Naval Lodi? नवल. Okay. Yes. Average. Average. और average these numbers. तो आ गया. सर a function that can be used is number, उसके अंदर वो चेंज हो जाता है. देखें ये लेफ्ट अलाइन नजर आ रहे हैं, that is an indication that these are numbers. अगर ये राइट नहीं 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 थोड़ा मैं गलत किया गया. लेफ्ट अलाइन नजर आ रहे हैं तो these are the text, लेकिन इन्हें इनको खुद ही कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे. लेकिन अगर ये राइट अलाइन होते हैं तो these are numbers, क्योंकि numbers are right aligned in Excel and text are left aligned. तो ये आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट है, ये सब लेफ्ट अलाइंड है, लेकिन ये भी टेक्स्ट है और ये भी टेक्स्ट है. लेकिन मैंने जब एवरेज लगाया उस दैट टाइम आई वाज यूजिंग द इनकरेक्ट स्पेलिंग. AVARAGE यूज कर रहा था, इसको हम AVERAGE करते तो सही हो जाता है ये. ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग टू द ये दिस इज पैरामीटर मीन, म्यू, MEU, म्यू, दिस इज पैरामीटर. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन वेरिएंस. So it is equal to, formula should be placed here, is equal to VAR. VAR for variance. There are the 2 functions for variance. One is VARP, VARS. You can see VARP the variance of population, VARS the variance of sample. So I am interested here the variance of population.
the variance of population of these numbers. So this is the another parameter. Now format. This is the variance of population. This is parameter. This is parameter. These are the two parameters, variance. Now I am interested in the mean and variance of sample. So this is my sample and average. Same function is to be used here. Average of these marks, 15. This is sample mean. Sample mean, which is a statistic. Our sample variance is equal to VAR S instead of VAR P, VAR S. What is the difference between the formulas of the two, n minus 1 and n? So this is 1.5. The variance of population is 6.5 and the variance of sample is 1.5. There's a quite difference between the two. But you can see that the mean of population is 15.6 and 15.3 and the mean of sample is 15. They are quite close. So if the sample mean is quite close to the population mean, we can say that a good estimate. Sample mean is a good estimate of population mean. We can see here, it is 15, it is 15.3. There is a good estimate. Okay? I am just going to finish here. If anyone have any question, you can ask. सर आप ये लेक्चर अपलोड करेंगे ना? रिकॉर्डिंग कर दूंगा मैं. ओके सर, थैंक यू सो मच. रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देंगे ना आप? रिकॉर्डिंग कर दूंगा, लेक्चर तो अपलोडेड ही है ना ऑलरेडी. और सर ये जो प्रेजेंटेशन यूज हो रही थी, जो गूगल साइट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन थी, वो शायद इस वाली से थोड़ी डिफरेंट थी. हाँ, वो मैं अपडेट कर दूंगा आज इंशाल्लाह. ओके सर. आकाश कुमार हैं इस वक्त क्लास में? यस सर. अच्छा आकाश, ये इनका ग्रुप वगैरह बना लो और ये 60 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, जबकि ये सर बना हुआ है ग्रुप व्हाट्सएप पे. बेटा ये 90 स्टूडेंट होने चाहिए थे, 60 हैं यहाँ. इसका मतलब है बाकी 30 स्टूडेंट कहाँ हैं इस वक्त? सर ये ग्रुप की आप लिंक जो है LMS पे डाल दें. ठीक है चलिए. सर वो ईमेल का चेक करवा लीजिएगा, बिकॉज मुझे ईमेल मिले नहीं थे, तो आई थिंक उनको भी नहीं मिली होगी. I will use the same Zoom link for the subsequent meeting whenever it will be. ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं होगी कि आप Zoom के वो मैं ID पासवर्ड चेंज नहीं करूंगा, बस यही रहेंगे. तो इसमें परेशान ना होइएगा कि भाई अगली दफा मीटिंग का जो पासवर्ड और क्या होगा लिंक, कुछ नहीं होगा, यही रहेगा. इससे आसान ठीक है सर, हमें बार बार परेशान नहीं होना पड़ता. ठीक है. हेलो. और बाकी और कुछ पूछना है अगर तो पूछ लें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज द मीटिंग. जी सर. हेलो सर. जी बोलें, कौन बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ आकाश. I have to make an announcement to the class. Please nobody. You can. Yeah. So I have made a Facebook group for this class. मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिए प्लीज. तो सारी अनाउंसमेंट मैं वहीं पे कर दूंगा. Okay. Akash is saying he is sharing a link of a Facebook group and he will share the things over there. You have to pick the data from that Facebook group. ठीक है सर. Okay ji, thank you very much for the today's lecture. Wish you good luck for the next time. Allah Hafiz. Thank you sir. Allah Hafiz.